Dear friends, today I am going to explain you a concept of updated return. Updated return is a new concept introduced by the Finance Act 2022 which is being made applicable from the previous year 21-22. Updated अभी तक हमारे income tax में there was a normal provision for filing the original return. There was a provision for filing the revised return, and there was a provision for filing the belated return. This is a new concept which is being introduced. The theme behind this the concept is the self-compliance for disclosing undeclared income by paying additional income tax. मैं आपको इससे पहले एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स प्रोविजन का जो पेनल प्रोविजन है सेक्शन 270A उसके बारे में लाइटली ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। ये प्रोविजन मेरा क्या बोलता है? ये प्रोविजन बोलता है कि इफ इनकम टैक्स असेसमेंट में जो आप रिटर्न फाइल करी है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट देयर इज सम एडिशन टू द रिटर्न इनकम, then assessee is liable to pay a penalty of 50% of tax on additional income which is being added in the course of assessment proceeding. ये जो penalty है, this is basically a penalty which is minimum 50% and it can maximum go up to 200% of tax on additional income assessed during the course of assessment. Now, our income tax department, our income tax law is going towards the concept of self-compliance. Then government think कि भाई हम लोग ऐसा एक प्रोविजन बनाए where assessee feels कि उसकी इनकम अभी उसने डिक्लेयर नहीं करी है and which he feels want to declare. Now to that end the government introduced the concept of updated return. Updated return में उन्होंने basically क्या बोला है कि हम अभी आगे पढ़ेंगे कि आपने जितनी इनकम आप डिस्क्लोज कर रहे हो उस पे जितना भी आपका नॉर्मल टैक्स है, इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स यू हैव टू पे सर्टेन एडिशनल इनकम टैक्स विच इज रेंजिंग फ्रॉम 25% टू 50%। ये हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द थीम बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न is the self-compliance for disclosing undeclared income by paying additional income tax. इस डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा हु कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न, under what circumstances updated return cannot be filed, and under what circumstances additional updated return is to be mandatorily filed, and what is the tax liability to be the tax liability means tax to be deposited at the time of filing updated return. ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे मई 23 एग्जामिनेशन और एंड नवंबर 23 एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है बिकॉज अपने मई 23 के मॉड्यूल में इस दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस। अब मैं आपको बताता हूँ हु इज द पर्सन, हु आर द पर्सन हु कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न। Law provide that every person means whether individual, HUF company means whatever is the nature of person is eligible to file updated return whether or not he has filed earlier return of income means अगर assessee से हमें अभी individual की बात करते हैं, if individual has filed previously original return and he feel कि some of the income he has missed to report, then he is also eligible to file updated return. Second case, if a person has not filed a return of income and if he feel he want to disclose the income, then also he is eligible to file updated return. Means the option to file updated return is available to both category of person who has earlier filed return of income or not. Now, what is the time limit for filing updated return? Under income tax proceeding or under whatever is the statutory proceedings, there is always, these are always close-ended. Means there a maximum time limit has been prescribed for filing updated return also. Updated return for can be filed within 2 years from the end of the assessment year for which updated return is to be filed.
It means for previous year 21-22 assessment year is your 22-23, means updated return can be filed up to 31st March 25. Beyond for previous year 21-22, that is assessment year 22-23. Beyond this, updated return cannot be filed. This is a maximum time up to which an updated return for previous year 21-22 can be filed, beyond which it cannot be filed. Now time limit clear हो गया. अब now the circumstances under which updated return cannot be filed. मैं इससे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन है, दिस इज इन फेवर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट and this is not a beneficial provision for assessee. It means इस केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल करके असेसी अ पर्सन कोई बेनिफिट ऑब्टेन नहीं कर सकता. मींस अर्लियर उसके रिटर्न फाइल नहीं की थी, देयर वाज अ रिफंड. नाउ ही कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न टू क्लेम अ रिफंड. तो मींस ये जो अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन है, इट इज बीइंग मेड टू डिस्क्लोज undeclared income, and it cannot be used to claim certain benefit which assessee omitted to claim while filing original return. ये थीम को ध्यान रखते हुए हम आगे पढ़ते हैं कि in what situation updated return cannot be filed. In the This is a general provision and there is a person specific provision. In general case, in following cases, updated return cannot be filed. Updated return is return of loss. Means आप अपडेटेड रिटर्न को अब नहीं फाइल कर सकते इफ दिस रिटर्न ऑफ लॉस. मैं एग्जांपल लेता हूं, एक मिनट. से पर्सन फाइल रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 डिक्लेयरिंग लॉस ऑफ रुपीज 20 lakhs under the head PGBP. Now assessee feels he has undeclared income to the extent of 15 lakhs. Now अभी उसने लॉस कितना क्लेम करा है, 20 lakhs उसने लॉस क्लेम करा है. अगर वो 15 lakhs की इनकम को यहाँ पे डिक्लेयर करता है, even then the updated return is a loss return. Now in this situation also he cannot file the updated return. In this situation, he can file updated return only if he has income more than this loss, that is more than 20 lakhs. तो मैंने आपको बोला अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट असेसी अपने फेवर में नहीं ले सकता. इसी थीम को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन ड्राफ्ट करा गया है. तो अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी अ रिटर्न ऑफ लॉस. Updated return cannot be filed where updated return result in decrease in tax liability as declared in the earlier return. Means ऐसा कोई केस नहीं बनेगा जहां पे असेसी अपडेटेड रिटर्न फाइल करके प्रीवियसली फाइल्ड रिटर्न के अकॉर्डिंग जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी उसको वो मिनिमाइज कर सके. Updated return cannot be filed where updated return results in a refund. फॉर एग्जाम्पल असेसी ने रिटर्न फाइल ही नहीं करी. ही फील्स उसकी 6 lakhs की इनकम है. नाउ ही वांट टू फाइल दी रिटर्न फॉर 6 lakhs एंड अगेंस्ट उसके पास 50 लाख रुपीस का, सॉरी 50,000 रुपीस का, दोबारा राइट करता हूँ मैं, 6 लाख रुपीस की उसकी अनडिक्लेयर्ड इनकम है और 50,000 उसका टीडीएस ऑलरेडी उस पर डिडक्टेड है. Now on the for 6 lakhs the tax liability is comes to be 12,500 plus tax liability for 6 lakhs income comes to 32,500 and he is claiming a TDS of 50,000. There comes the refund of 17,500. Now in this situation also updated return cannot be filed. Updated return cannot be filed which increase the refund already claimed in earlier return. Friends, you will see in all these cases
अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। तो यू विल अप्रिशिएट सारे केस मेरे कौन से ड्राफ्ट करे गए लॉ में, जहाँ पे असेसी को बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पे अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का उससे प्रोविजन हम लोगों ने बेसिकली ड्रॉप कर दिया है। Updated return cannot be filed where it is a return of loss. Updated return cannot be filed which decrease the previously filed tax liability. Updated return results in refund. ये जब भी केस होगा बेसिकली when you are filing the return for the first time, और updated return increase the refund already claimed in the earlier return. इन चारों केसेस में assessee is not, the assessee do not have an option to file the updated return. These are the general case which are applicable for each and every case. Now, law has drafted certain situation which is a person specific. Following persons are not eligible to file updated return. Who are these persons? Persons in whose case search has been initiated. Basically, जो हमें common terminology में word use करते हैं, there is a raid has been done on assessee, which is called search. Search has been initiated in the case of assessee. Books of accounts has been requisitioned under section 132A, or survey has been conducted under section 133A. In तीनों cases में where this type of activity has been done against a person, then he cannot file updated return for assessment year relevant to previous year in which search is initiated or survey is conducted or requisition is made, and एनी असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग सच असेसमेंट ईयर। मीन्स अगर असेसी के पास, असेसी के केस में एग्जांपल लेता हूँ, इस प्रीवियस ईयर में सर्च हैज बीन अंडरटेकन, देन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 एंड फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। क्लियर हो गया प्रोविजन? सेकेंड, a person who has filed earlier updated return for any assessment year cannot file updated return for said assessment year. It means the revision of updated return is not allowed. Is not allowed. It means the option to file updated return for any previous year is available once for a while. It cannot be revised again. A person in whose case proceedings for assessment, reassessment, revision of income is pending or are completed for assessment year cannot file updated return for said assessment year. It means अगर आपके पास assessment, reassessment और revision का even notice has been initiated, notice has been given, you cannot file updated return for that assessment year for which assessment, reassessment or revision notice has been given. And और अगर आपकी assessment proceeding has been closed, even then you cannot file updated return. तो यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न आप जब भी फाइल कर सकते हैं बेसिकली जब आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग हैज नॉट बीन इनिशिएटेड। Fourth case, department has received some information for a person under DTA and such information has been communicated to said person. In such case, said person cannot file updated return. DTA basically क्या चीज़ है? DTA is your double taxation avoidance agreement. Suppose government has received an information that person has put his undeclared income abroad, and that government has passed on such information to that person to explain the source of income. In such scenario also, a person cannot take the benefit of updated return and disclose that income. You will appreciate that सारे provision वो ड्राफ्ट करे गए हैं where assessee cannot, मीन्स जहाँ assessee को पता लग गया है कि डिपार्टमेंट को उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन है which has been communicated, then assessee cannot claim the benefit of this provision to declare that undisclosed income. Person in whose case prosecution proceeding has been initiated for assessment year also cannot file the updated return. तो यहाँ पे हम लोगों ने दो सिनेरियोस समझे जहाँ पे अपडेटेड रिटर्न
असेसी फाइल नहीं कर सकता। फर्स्ट इज द सिनेरियो वेयर which is applicable in each and every case, means whatever is the situation of a person. And in second category we study where a person, this situation is a person specific, means यहाँ पे ये typical situation में a specific person cannot file the updated return. तो अभी हमने क्या चीज समझी, हमने थीम समझी, हमने समझा हु कैन फाइल एलिजिबल रिटर्न, हमने टाइम लिमिट समझी, और हमने समझा कि इन व्हाट सिचुएशन अ पर्सन कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न. Now we comes to the case where mandatory filing of updated return means इस अब हम जो केस करेंगे समझने जा रहे हैं वो केस है जहाँ पे इट्स मैंडेटरी टू फाइल अपडेटेड रिटर्न. मैं आपको बताता हूँ वो केस क्या है. Assessee has filed updated return for any previous year, and as a result thereof, any loss, unabsorbed depreciation, MAT credit, AMT credit carry forward in future year has been reduced. Example लेता हूँ. Say for previous year 21-22, assessee claimed loss under PGBP of rupees 10 lakhs. Now he filed updated return, and this loss he has used in financial year 20 previous year 22-23. He filed updated return on 31st March 24, where if updated return में जहाँ पे उन्होंने अपना 25 लाख रुपीस इनकम एडिशनल डिक्लेयर कर दी, the net income comes to 15 lakh rupees. नौ अभी क्या हो रहा था, 10 लाख रुपीस लॉस का बेनिफिट असेसी किस प्रीवियस ईयर में क्लेम कर रहा था, 22-23 में. नाउ वर्च्यू ऑफ अपडेटेड रिटर्न, दिस लॉस इज नॉट अवेलेबल फॉर बीइंग यूज इन प्रीवियस ईयर 22-23 बिकॉज यहाँ पे असेसी ने बाय डिक्लेयरिंग 25 लाख रुपीज ऑफ एडिशनल इनकम, उसकी नेट इनकम कितनी आ रही है, 15 लाख रुपए. मीन्स 10 लाख लॉस का बेनिफिट असेसी ने प्रीवियस ईयर 21-22 में यूज कर लिया अंडर अपडेटेड रिटर्न. इन सच सिनेरियो इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर असेसी टू फाइल अपडेटेड रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर 22-23. यू विल अप्रिशिएट द लॉजिक. जो लॉस हम 22-23 में कैरी कर रहे थे वो लॉस हमने 21-22 में यूज कर लिया. अकॉर्डिंगली 22-23 की इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर असेसी टू फाइल दी अपडेटेड रिटर्न. तो असेसी वही प्रोविजन है, असेसी हैज फाइल अपडेटेड रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर, और जहाँ पे लॉस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन मैट क्रेडिट एएमटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा था फ्यूचर ईयर में. It's mandatory to file updated return for each of the future year where such loss, unabsorbed depreciation, MAT credit or AMT credit has been reduced. In this scenario, we have assumed कि previous year 22-23 में हम लोगों ने इस unabsorbed loss को यूज करा था जो reduce हो रहा था इस previous year में. तो इस previous year में असेसी को रिटर्न फाइल करना इट्स अ मैंडेटरी. तो अब मैं आपको बताता हूं कि रिटर्न अपडेटेड रिटर्न में असेसी को कौन कितना टैक्स डिपॉजिट करना है. इसको हमने दो सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं. रिटर्न इज फाइल्ड फर्स्ट टाइम एज अपडेटेड रिटर्न, एंड सेकंड सिनेरियो में हम लोग समझ रहे हैं रिटर्न अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर फाइलिंग द अर्लियर रिटर्न. वेयर असेसी इज फाइलिंग द रिटर्न फर्स्ट टाइम, तो जो टैक्स डिपॉजिट करना है उसको हमने चार कैटेगरी में समझना: नॉर्मल टैक्स, इंटरेस्ट, फीस एंड एडिशनल टैक्स. दिस इज important, that's why I have color in a different color.
नॉर्मल टैक्स कैसे निकलेगा? जो भी आपने अपडेटेड रिटर्न में इनकम डिस्क्लोज करी है उस पे यू वर्क आउट द टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। उसमें से आपका जितना टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, डीटीए में जो डबल टैक्सेशन का आपको रिलीफ मिल रहा है, मैट और एएमटी टैक्स रेट माइनस करके यू विल वर्क आउट दी नॉर्मल टैक्स। मीन्स जिस तरह से हम नॉर्मल टैक्स वर्कआउट करते हैं वाइल फाइलिंग द ओरिजिनल रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न, हम ये लोग वर्कआउट करेंगे। उसके बाद विल कंप्यूट द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। 234A इज फॉर डिले फाइलिंग, 234B is for late deposit of advance tax, and 234C is a delay in depositing advance tax installments. Since assessee is filing the return first time तो उस पर 234A एप्लीकेबल होगा, 234B 234C भी एप्लीकेबल होगा। फीस 234F की जो फीस है फॉर लेट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न वो भी एप्लीकेबल होगी, 5,000 to 1,000 डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। नाउ ये जो तीन टैक्स है ए बी सी, ये तो असेसी को इन एवरी केस अगर वो ओरिजिनल रिटर्न भी फाइल करता है तो भी उसका डिपॉजिट करना ही पड़ता है। what additional tax he has to pay is provided this thing, and this is being provided under section 140B. अगर assessee is filing updated return within 12 months from the end of the relevant assessment year, relevant assessment year means जिस assessment year की वो updated return file कर रहा है, then he has to pay additional tax which is 25% of aggregate of ABC। और अगर वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, देन द अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स हैज बीन इंक्रीज टू द 50%। तो यू विल अप्रिशिएट कि जो 270A सेक्शन में पेनल्टी इम्पोज की जाती वो गवर्नमेंट वर्च्यू ऑफ अपडेटेड रिटर्न एक सेल्फ कंप्लायंस मोड में असेसी को खुद बोल रही है कि आप आ जाओ और आप हमको अगर आपकी अनडिस्क्लोज अनडिक्लेयर इनकम है देन यू डिस्क्लोज वॉलंटरली विद इन दिस टाइम फ्रेम, तो आपको सिर्फ 25 से 50% तक एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। यू विल अप्रिशिएट कि यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्स जमा करना था सेसी को वो तो है ही, उसको जो एडिशनल टैक्स है दिस इज बेसिकली एन एडिशनल टैक्स फॉर फाइलिंग फॉर डिस्क्लोजिंग अनडिस्क्लोज अनडिक्लेयर इनकम। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो हमको कौन कौन से टैक्स डिपॉजिट करने हैं, नॉर्मल टैक्स, इंटरेस्ट, फीस एंड एडिशनल टैक्स विच इज 25 to 50%। अब मैं आपको केस लेके चलता हूँ वेयर अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर फाइलिंग अर्लियर रिटर्न। यहाँ पे आपका नॉर्मल टैक्स आएगा, इंटरेस्ट में 234A का नहीं आएगा, गलती लिख गया, और फीस भी आपकी यहाँ पे नहीं आएगी, ये गलती से कॉपी हो गया। सिर्फ नॉर्मल टैक्स है, इंटरेस्ट 234B का है, 234C का है और एडिशनल टैक्स है। यहाँ नॉर्मल टैक्स कैसे वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। First of all, you will compute the gross tax on the basis of income declared in updated return, including surcharge and cess. उस टैक्स में you will then done the following adjustment. आप ये चीजें सारी लेस करोगे, कौन सी? TDS, TCS, advance tax claim in earlier return। भाई अपडेटेड रिटर्न में आप टोटल इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं, मींस ओरिजिनल रिटर्न आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, अपडेटेड रिटर्न में ओरिजिनल इनकम आप डिस्क्लोज कर रहे हैं प्लस एडिशनल इनकम। तो सिंस जब आपकी यहाँ पे ओरिजिनल इनकम भी आ रही है तो ओरिजिनल इनकम पे जो आपने टैक्स अर्लियर, वन फॉर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, जो भी आपने अर्लियर क्लेम करा है वो माइनस होगा। देन लॉ व्हाट प्रोवाइड टीडीएस टीसीएस ऑन एडिशनल इनकम डिक्लेयर इन द रिटर्न, इसको भी आप ग्रॉस टैक्स जो आपने वर्कआउट करा माइनस करेंगे। इसके बाद डबल टैक्सेशन रिलीफ अगर है आपका ऑन एडिशनल इनकम वो माइनस होगा। मैट एएमटी टैक्स रेट अगर आपका है ऑन एडिशनल इनकम वो माइनस होगा।
एंड व्हाट इज टू बी एडेड, अगर आपका ओरिजिनल रिटर्न में रिफंड था और वो आपको इशू हो गया, आपको मीन्स डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड दे दिया है, वो भी आप ऐड करेंगे। अगर रिफंड सिर्फ क्लेम करा है और अभी इशू नहीं करा है तो वो आपको ऐड नहीं होगा। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। एसएससी ने 10 लाख रुपए की टोटल इनकम डिक्लेयर करी, उस पर टैक्स आ रहा था 1,12,50 हंड्रेड। अब एसएससी का जो टीडीएस डिडक्टेड था से वो था 1,20,000। एसएससी का रिफंड कितना बन रहा था? 17,500। अब एसएससी ने अगर ये एसएससी को रिफंड इशू हो गया है तो जब हम अपडेटेड रिटर्न में क्लेम करेंगे तो अपडेटेड रिटर्न में हम क्या क्लेम करेंगे? तो मैंने अपडेटेड रिटर्न फाइल करी 20 लाख रुपीज़ की। 20 लाख रुपीज़ पे मेरा सिंपल जो टैक्स आया, से एज्यूम करता हूँ 20 लाख पे वर्कआउट कर लेते हैं। 10 लाख तक 1,12,500, उसके बाद 10 लाख पे 30,000, 4,12,500 प्लस 4% सेस। सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी सेस इसका 4% 16,500 जोड़ लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। 0, 9, 4,29,000 ये आ चुका है। अब एसएससी ने टीडीएस कितना क्लेम करा था अर्लियर? 120, ये हम इसका बेनिफिट देंगे। बट एसएससी को ऑलरेडी रिफंड ऐड हो चुका है, मिल चुका है, ये ऐड कर देंगे। तो नेट में जो पहले एसएससी ने टैक्स लाइबिलिटी डिस्पोज ऑफ की थी, अपडेटेड रिटर्न में उतनी ही टैक्स लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे माइनस हो रही है। यहाँ पे सेस मैंने जस्ट टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन एक नंबर रफ नंबर ले लिया। ये आपको क्लियर हुआ कि पहले हम अगर हमने रिटर्न ऑलरेडी फाइल करी है तो हम टैक्स पेबल में जो ग्रॉस टैक्स निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड रिटर्न। उसके बाद जो अर्लियर टैक्स हम लोगों ने क्लेम करा था वो डिपॉजिट करेंगे, टीडीएस, डबल टैक्सेशन, मैट, एएमटी और एडिशनल इनकम, ये माइनस करेंगे। और रिफंड अगर ऑलरेडी इशू हो चुका है एसएससी को तो वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट हम कैसे वर्कआउट करेंगे? सिर्फ 234 बी और 234 सी का। 234 ए एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज एसएससी ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइल कर चुका है एक बार। नाउ द एडिशनल टैक्स यहाँ पे किसका आ रहा है? नॉर्मल टैक्स और आपका इंटरेस्ट का। इवन 234 एफ की लेट फीस भी नहीं आएगी बिकॉज एसएससी फाइल कर चुका है। तो एडिशनल टैक्स का जो लेवल है वो तो सेम है, सिर्फ कंप्यूटेशन मैकेनिज्म चेंज हो गया है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल टैक्स और इंटरेस्ट कवर कर रही है। अगेन 25% इफ अपडेटेड रिटर्न इज फर्निश्ड विद इन 12 months and the 50% of additional tax if return is furnished within 24 months from the end means अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ ये चीज। अपडेट 50% of the additional tax if return is furnished after 12 months बट बिफोर 24 months। ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग इशू था। सिमिलरली हेयर 50% if return is furnished after 12 months बट बिफोर 24 months। और 12 मंथ्स भी हम यहाँ पे जो हम चीज़ लेना चाह रहे हैं 12 मंथ्स भी कब से? आफ्टर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो आई होप आपको ये प्रोविज़न जो है अपडेटेड रिटर्न का क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको कोशिश करी है थीम समझाने के साथ साथ क्या क्या इसमें कौन फाइल कर सकता है, क्या टाइम लिमिट है, कब फाइल नहीं कर सकते और कब फाइल करना मैंडेटरी है, अलॉन्ग विथ हाउ मच टैक्स टू बी डिपॉजिटेड।